us step by step and is teaching us how you and I can overcome defeat. और परमेश्वर कदम दर कदम हमें ले जा रहा है और सिखा रहा है कि किस तरह से हम जीत को अपने जीवन में लें। Your heavenly Father आपका स्वर्गीय पिता is a God of victory वो विजय का परमेश्वर है in all of his existence. और उसके संपूर्ण उपस्थिति में He has never once been defeated. वो एक बार भी हराया नहीं गया। You are his child. आप उसके बेटे हैं। God says परमेश्वर कहता he है has paid for your victory in every circumstance in your life. आपके जीवन की हर परिस्थिति में विजय के लिए उसने मूल्य चुका दिया है। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Who are you? आप कौन हैं? You are a child of आप God. परमेश्वर की संतान हैं। That's right. ये ठीक है। Your heavenly Father has never been defeated. और आपका स्वर्गीय पिता कभी भी हराया नहीं जा सकता And neither does he want you to be. और ना ही वो चाहता है कि आप हारें। We began to look in the book of 2 Chronicles chapter 20. और दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय। It's the story of King Jehoshaphat. ये राजा यहोशापात की कहानी है। It's a story where you see an incredible display of power that the devil orchestrated against God's people. और परमेश्वर के जनों के सामने शैतान ने अपने बड़े सामर्थ को दिखाने का प्रयास किया। 3 nations, 3 राष्ट्र Ammon, अम्मोन, Moab, मोआबी and Edomites, और मूनियों they gathered together, वे एक साथ आ गए combined their military force together, और उन्होंने अपनी सेना को एक जगह इकट्ठा किया and they came against the small nation of Judah. और वो यहूदा के जो छोटा राष्ट्र है उसके विरोध में आए। Judah belonged to God. और यहूदा जो है वो परमेश्वर का है। The king of Judah was Jehoshaphat. और यहूदा देश का राजा जो था वो यहोशापात था। He is a man who loved God and feared God. ये वो व्यक्ति था जो परमेश्वर से प्रेम करता और परमेश्वर से डरता था। When he heard that these 3 armies are marching towards him, और जब उसने सुना कि ये तीनों देश की सेनाएं उसकी ओर आक्रमण के लिए आ रही he हैं, knew in his heart उसने अपने हृदय में जाना that they would be suddenly destroyed. कि वो बहुत जल्दी नाश हो जा As सकते a हैं। nation, they will be annihilated and wiped out from the face of this earth. और उन्होंने समझ लिया कि एक देश के रूप में वो इस पृथ्वी पर से नाश किए जाएंगे। Bible says बाइबल बताता है Jehoshaphat feared यहोशापात डर गया and he set himself to seek the face of God. और उसने अपने आप को परमेश्वर के मुख को ताकने के लिए रखा। He called for a fast. उसने एक उपवास को बुलाया And all the people of Judah came and began to stay before the Lord to fast. और फिर पूरे यहूदा राष्ट्र के लोग आए और परमेश्वर के सम्मुख उन्होंने उपवास किया। They refused to accept the plan of the devil for their lives. उन्होंने शैतान की योजना को अपने जीवन में ग्रहण करने से इनकार The किया devil wanted to destroy them और शैतान उनका नाश करना चाहता था because he had a different plan. क्योंकि उसके पास एक दूसरी योजना थी। His wicked, sinister plan included not just wiping Judah off, और उसकी दुष्टता की जो योजना थी उसमें सिर्फ यही सम्मिलित नहीं था कि वो यहूदा का नाश करे, but he also wanted to make sure that the Messiah would not be born in this world through the tribe of Judah. और उसकी योजना ये भी रही कि मसीहा यहूदा के वंश से इस संसार में पैदा न होने पाए। But these people began to pray. लेकिन इन लोगों ने प्रार्थना करनी शुरू की And the first step that King Jehoshaphat took to overcome this defeat और इस हार के ऊपर विजय पाने के लिए जो पहली बात यहोशापात ने की वो ये was that he fully recognized who he was calling upon. और उसने सबसे पहले इस बात को जाना कि वो किसको पुकार रहा है। That's the first step.
ये पहली बात थी। In your life, आपके जीवन में you may have experienced defeat in the hands of the devil. और शैतान के हाथ से आपने हारों का अनुभव किया होगा। Some of you have incurable disease in your body. आप में से बहुतों के शरीर में असाध्य रोग होंगे। Some of you have suffered losses in your business. और बहुत से लोगों ने अपने व्यवसाय में असफलता को लिया होगा। Some among us are living under tremendous debt. और हम में से बहुत सारे लोग एक बहुत बड़े कर्जे में जी रहे होंगे। Some of your marriages may have separated. हो सकता है आपके विवाह, बहुत से ऐसे हैं जिनके विवाह विच्छेद हुए In होंगे। some of our homes, maybe our children are addicted to drugs and alcohol and their lives are being destroyed. और बहुत से ऐसे होंगे जिनके बच्चों को बुरी आदत पड़ गई है नशे की और वो तबाह हो रहे हैं। But that is not the plan of God for your life, for your family, for your finances. लेकिन ये परमेश्वर की योजना नहीं है आपके परिवार के लिए, आपके धन के लिए। God has a plan. परमेश्वर के पास योजना है। He wants to teach you how to reverse this defeat and walk in victory. वो आपको बताएगा कि किस तरह से इस हार को विजय में बदला जाए। And the first step और जो पहली बात है is that you and I must fully recognize who it is we are calling upon. वो पहली बात ये है कि हम इस बात को समझें कि हम उस परमेश्वर को जाने जिसको हम पुकारते हैं। In time of your need, और आपकी जरूरत के समय में you need help from God. आपको परमेश्वर की सहायता की आवश्यकता है। Why? क्यों? Because your heavenly Father is a God of unlimited power. क्योंकि आपका स्वर्गीय पिता असीमित सामर्थ का परमेश्वर है। Your heavenly Father has given you covenant promises. और आपके स्वर्गीय पिता ने वाचा की प्रतिज्ञाएं आपको दी हैं। These are not empty words, mere words printed in black and white. और ये सिर्फ साधारण शब्द नहीं जो इस कागज के ऊपर छपे हैं। Rather, they are the words of God that He has spoken. बजाय उसके ये परमेश्वर के वचन हैं जो उसने कहे। And when God speaks, और जब परमेश्वर कहता है He binds Himself with the word that He has spoken. तो वो अपने आप को उन वचनों से बांध लेता है जिनको उसने कहा। And the words of our God, और हमारे परमेश्वर के वचन they are trustworthy. और वो विश्वास योग्य हैं They are reliable. और उन पे भरोसा किया जा सकता है। And it will be fulfilled in your life. और ये आपके जीवन में पूर्ण होंगे। Hallelujah. हालेलुया। Come on, everybody say this after me. और हर एक व्यक्ति मेरे पीछे इस बात को कहे, The words of my God मेरे परमेश्वर के वचन must be trusted. उन पर विश्वास होना जरूरी है। The words of my God are reliable. मेरे परमेश्वर के वचन भरोसेमंद हैं।